Hello my dear students, good morning to all. Today we will study what? Multiple choice question MCQs. First example, the dotted line that divides a figure into two equal parts. Into what? Two equal parts. The line which divides a given figure into two equal parts is called what? Partition of line. B option given, line of symmetry, or C option given, none of these. Among these three options, one option is correct and two option is incorrect, means incorrect. So we have to put right on the correct option. The dotted line, जैसा कोई भी हमने देखे थे फिगर हमने जैसा सर्कल के अगर दो इक्वल पार्ट्स होते हैं, the dotted line, this line is called what? Line of symmetry. It is called what? Line of symmetry. So which option? Option number B, line of symmetry. The line which divides the given figure into two equal parts, that line is called the line of symmetry. Now second, which of the following is a symmetric figure? Here we are getting two equal parts now because this one came here. Because of this, यहाँ पर दो इक्वल पार्ट्स नहीं आते, यहाँ पर भी दो इक्वल पार्ट्स नहीं हो सकते, लेकिन इस फिगर में क्या हो सकते हैं? अगर ऐसी लाइन ड्रॉ करेंगे हम ऐसे, तो इस फिगर में हमें दो क्या मिलते हैं? दो इक्वल पार्ट्स मिलते हैं. Which of the following is a symmetric figure? So which diagram? Third, C. Now third, which of the following shows a pattern? देखो one के बाद two नहीं है, three है. One number leaving and next number we are doing 1, 3, 5, 7, 9. Actually these numbers are odd number. 9 के बाद 11 हो गए, ठीक है? ये odd number है. ये 1, 4, 5, 6, 11, 10. C दिया है 10, 15, 13, 4, 8. तो इनमें से क्या पूछा है? Which of the following shows a pattern? यहाँ पर पैटर्न है, लेकिन यहाँ पर कुछ गैप नहीं. 1 के बाद 1 plus 3 4 और plus 3 7 आना चाहिए, नहीं हो रहा है. 10 plus 5 15, 5 का गैप है. फिर 15 plus 5 20 आना चाहिए, लेकिन यहाँ 30 है ना? यहाँ पर बराबर है 1 plus 1 2, या फिर यहाँ 1 के बाद 2 नहीं है, 3 लिए है, ठीक है? 4 नहीं है, 5 है, एक छोड़कर एक ले लेगा. इसलिए ऑप्शन ए इज करेक्ट. सो नोट डाउन दिस. Fourth question, that one MCQ. What is given? Figures that can be divided into two equal parts are called. The figure which can be divided into two equal parts are called what? Plane figure or symmetric figure or none of them. The figure which can be divided into two equal parts are called what? Symmetric figures. Understood? Now, if to represent a number as the sum of two smaller number is called what? Partitioning of a number or addition of a number or none of these. To represent a number as the sum of two smaller number is called partitioning of a number. It is called what? We have studied. For example, 63 equal to 60 plus 3, like that. And B, now fill in the blanks. The question what is given here? Fill in the blanks. We have to very fill in the here given here dash and here dash. We have to complete that one. 2, 4, 6, 8, dash, 12, dash, 18. 2, 4, 6. Actually, this is table of what? 2's table. 2 का टेबल है, या फिर इवन नंबर्स में, या फिर 2 plus 2 4, 4 plus 2 6, 6 plus 2 8. Every time you have to add 2. Otherwise, these are odd number. ठीक है? 2 plus 2 4, 4 plus 2 6, 6 plus 2 8, 8 plus 2 what? 10. या फिर 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6, 2 4 8, 2 5 10, 2 6 12, 2 7 what? 14, 2 8 60. समझ में आया? ऐसा. Now this is the diagram here. ऐसा दिया है यहाँ पर 1, फिर अभी ये 2 हो गए, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर क्या आना चाहिए? 4, यहाँ पर 5 आना चाहिए. 1 2 3 4 5, isn't it? उल्टा भी दिया है, यहाँ 2 भी दिया है, यहाँ पर 3 भी उल्टे है. यहाँ पर कितना आना चाहिए? 4. कॉम्बिनेशन एक नीचे है, एक ऊपर, ए डायरेक्शन है. फिर अभी यहाँ पर ऐसा है, तो यहाँ पर कौन सा डायरेक्शन आना चाहिए? ऊपर वाली. हाउ मेनी? B we have to make here, we have to show 4. 1 2 3 and again 1 4. ठीक है? ये ऐसा है 4 भी. अंडरस्टूड? यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 2 3 है, 1 2 3 4. तो यहाँ पर 1 2 3 4 5. अंडरस्टूड दिस वन? सो नोट डाउन दिस वन. फिल इन द ब्लैंक्स इन MCQ. Now third one, what is given? 130, 132, dash, 136, 137, and lastly 140. तो 130 गैप कितना है इसमें दोनों में? 31 32. ठीक है? दो का गैप है 130 130
32 के बाद 2 नंबर ऐड करो 33 34, सो 134, 13 सब में 13, ठीक है। यहाँ पर गैप आएगा 130 के बाद 31 32, फिर 132 के बाद 33 34, 134 में 2 ऐड करो 136 आया, 136 में 2 मिला 138, ठीक है। 138 प्लस 2 140, अंडरस्टूड। नाउ नेक्स्ट 9a, 7b, dash, 3d, 1e, 9 minus 7 how much? 2, अब 2 का गैप होगा 9 minus 7 सॉरी 9 minus 7 नॉट 2 का गैप आएगा उसमें, या फिर 1 3 ये ऑड नंबर है 1 3, 3 के बाद कौन सा ऑड नंबर आएगा, फिर 5 के बाद ऑड नंबर कौन सा आएगा 7 के बाद 9, यानी 1 plus 2 3 minus 1 2 का गैप आएगा 1 plus 2 3 plus 2 5 plus 2 7 plus 2 9। अभी यहाँ पर क्या है लेकर A B, यहाँ क्या है फिर C के बाद D के बाद E, फिर 9a, 7b, dash, तो यहाँ पर आएगा आपका कौन सा 5C, अंडरस्टूड। सो नोट डाउन दिस वन। Now true or false C example looked at, some letters like A, B, C shows symmetric. For example, a vertical line is getting, isn't it? If we are drawing vertical line, then we will get there 2 equal parts in letter A. Understood? In the same way, in letter B also we are getting 2 equal parts. In letter B also we are getting 2 equal parts. In the same way, in letter C also we are getting what? How many equal parts? 2 equal parts. Getting now? Shows symmetric. So this letter shows symmetric. Okay. A, B and C shows symmetric pattern. So this we have to, this statement is what? True. So write here true. ये तीनों लेटर में सिमेट्रिक पैटर्न आता है, अगर लाइन वर्टिकल, यहाँ पर आएंगे हॉरिजेंटल लाइन, यहाँ हॉरिजेंटल लाइन, शो सिमेट्रिक, सो दैट्स व्हाई ट्रू। पार्टीशनिंग ए नंबर हैव मेनी डिफरेंट वेज, उसके अलग अलग तरीके, 2 वेज 3 वेज 4 वेज, अलग अलग वेज है उसमें। पार्टीशनिंग ए नंबर हैव मेनी different ways. This statement is also what? True. Now third, number 3 and 8 have no symmetry. 3 में आता है, 3 में कौन सी लाइन आती है यहाँ पर? नंबर 3 में 2 इक्वल पार्ट्स होते हैं, लेकिन कब? हॉरिजेंटल लाइन। इन द सेम में नंबर 8 में भी कितने इक्वल, अगर हम हॉरिजेंटल ड्रॉ करो या फिर वर्टिकल, 2 इक्वल पार्ट्स हो जाएंगे उसमें, इसलिए नंबर 3 एंड 8 हैव सिमेट्री, लेकिन यहां लिखा है नो, इसलिए दिस स्टेटमेंट इज व्हाट? फॉल्स। यहाँ पे L या C, क्योंकि 3 और 8 में सिमेट्रिक लाइन आती है, यहाँ हॉरिजेंटल लाइन आती है और यहाँ वर्टिकल और हॉरिजेंटल 2 लाइन मिलती है। ओके, नाउ फोर्थ, नंबर सीक्वेंस 10, 9, 8, 7, 6 shows a pattern। क्या ये शो करता है कि पैटर्न का एग्जांपल है क्या? 10 के पहले 10, 9 दिया है, 8, 7, 6, 5, 4, ये क्या शो करता है? पैटर्न शो करता है। सो दिस स्टेटमेंट इज व्हाट? ट्रू। दिस इज ट्रू। एंड लास्ट वन, नंबर्स और ऑब्जेक्ट डिजाइन और ज्योमेट्रिक डिजाइन दैट डजंट फॉलो ए स्पेसिफिक ऑर्डर फॉर्म पैटर्न। क्या दिया है? नंबर, ऑब्जेक्ट, डिजाइन और ज्योमेट्रिक डिजाइन दैट फॉलोज ए सिमेट्रिक ऑर्डर फॉर्म ए पैटर्न, लेकिन यहां क्या लिखा है? डजंट फॉलो, इसलिए दिस स्टेटमेंट इज व्हाट? फॉल्स। डजंट नहीं चाहिए था वहां पर, यानी क्या चाहिए था? नंबर, ऑब्जेक्ट, डिजाइन और सिमेट्रिक डिजाइन दैट फॉलोज ए स्पेसिफिक ऑर्डर फॉर्म पैटर्न। उस समय अगर लिखा रहता था फॉलो करके तो यहाँ ट्रू आता था, लेकिन यहाँ पर है डजंट, इसलिए ये फॉल्स हो गया स्टेटमेंट। सो अंडरस्टूड। Now last question, value based question. What it is given here in the textbook? It is given page number 318. A public school organized a drawing competition. All the participants were told to draw symmetrical picture. In bracket it is given butterfly, comma Taj Mahal by using eco-friendly material. What value is the school trying to inculcate? It is given a public school. स्कूल का नाम है, एक स्कूल का नाम दिया है पब्लिक स्कूल ऑर्गेनाइज्ड। उन्होंने ऑर्गेनाइज किया है, क्या किया है? क्या के लिए? एक ड्राइंग कंपटीशन रखा है स्कूल में। ऑल द पार्टिसिपेंट्स वेर टोल्ड टू ड्रॉ सिमेट्रिक पिक्चर। सब बच्चों को बताया गया है सिमेट्रिक पिक्चर ड्रॉ करने के लिए।
सिमेट्रिक मतलब उसके ड्रॉ करने के बाद उसके दो इक्वल पार्ट होना चाहिए। और ब्रैकेट में क्या दिया उनको, टॉपिक कौन सा दिया गया है, एक बटरफ्लाई और दूसरा दिया है ताजमहल। जैसा बटरफ्लाई यानी तितली, वो डायग्राम हुआ था बटरफ्लाई का, कहीं तो भी बटरफ्लाई ऑलरेडी ओवर हियर समवेयर एल्स नॉट, तो ये बटरफ्लाई, ये ऐसा बटरफ्लाई यानी तितली, ठीक है। उसका डायग्राम निकालना है, कलर भी करना है उसमें, फिर उसमें लाइन ऑफ सिमेट्री तुम ड्रॉ कर सकते हो, दो इक्वल पार्ट्स। और उसके बाद या फिर दूसरा क्या दिया था उसमें, एक बटरफ्लाई और दूसरा क्या दिया है, निकालना है डायग्राम ताजमहल, ताजमहल का पिक्चर निकालना है, ठीक है। उसमें भी लाइन ऑफ सिमेट्री निकाल सकते हैं, यानी दो इक्वल पार्ट होना चाहिए। तो ये आपको करना है, आपको एक दो पिक्चर ड्रॉ करना है, एक बटरफ्लाई का और दूसरा है एक ताजमहल का, बाय यूजिंग इको फ्रेंडली मटेरियल। अब यहाँ पूछा और क्वेश्चन, व्हाट वैल्यू इज द स्कूल ट्राइंग टू इनकलकेट दैट वन आस्क्ड हियर, यानी द स्कूल इज ट्राइंग टू इनकलकेट अबाउट एनवायरमेंट एजुकेशन, किसके बारे में जानकारी हो रहा है यहाँ पर, द स्कूल इज ट्राइंग टू इनकलकेट अबाउट एनवायरमेंटल एजुकेशन के बारे में। सो इन दिस वे वी हैव कंप्लीटेड दिस lesson, but you have to make in this right question and draw their picture of butterfly, and second one is Taj Mahal. So understood? So this will be homework for you.